Hello everyone, welcome back to Akashvani classes. This is the fourth part of Introduction to Trigonometry. Till now we have completed exercise 8.3. Now we are going to start exercise 8.4. Okay, but before that again we have to look the last formulas of class 10th. Okay, in 11th you will see more formulas for trigonometry. So which formula we are going to see now? It is the trigonometric identities. What is trigonometric identities? There are three formulas. Okay, there are three formulas, and from that three we can derive two from each. Okay, so majorly you have to remember the three formulas, the three relation. Okay, that is called as the trigonometric identities. Okay, so let's see what are those three trigonometric identities. The first one is sine square theta plus cos square theta is equals to 1. What is it? Sine square theta plus cos square theta. Sine और cos स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट? तो उनके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. देन सेकेंड वन इज, and from this sin square theta plus cos square theta is equals to 1, what we can write sin square theta. ये sin square theta को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं so what we will get, ये cos square theta जो है वो राइट हैंड साइड पे आएगा, जो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस. सो वी विल गेट sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. ओके, देन सिमिलरली जैसे यहाँ पर sin square theta को लेफ्ट साइड पे रखा, cos square theta को राइट साइड पे सेंड किया तो ये मिला. वैसे अगर cos square theta को हम लेफ्ट पे रखते हैं और साइन को उस तरफ सेंड करेंगे तो वी विल गेट cos square theta is equals to 1, दिस प्लस sin square theta विल बिकम माइनस sin square theta. ओके, सो ये दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ये याद है तो आप इसी फॉर्मूला से ये दोनों डिराइव कर सकते हो. ओके, देन सेकेंड फार्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर इज 1 प्लस tan square theta इज इक्वल्स टू sec square theta. 1 प्लस tan square theta इज इक्वल्स टू sec square theta. ओके, यहाँ पे ये tan और sec के बीच का रिलेशन है. ओके, tan और sec का बीच का रिलेशन अभी तक हमने नहीं देखा, बट दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज 1 प्लस tan square theta इज इक्वल टू sec square theta. एंड इसी से अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, tan square theta को राइट हैंड साइड पे सेंड कर देते हैं, सो वी विल गेट 1 इज इक्वल टू दिस sec square theta प्लस tan square theta विल बिकम माइनस tan square theta. एंड सिमिलरली अगर हम tan square theta को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, सो वी विल गेट sec square theta minus 1, plus 1 will go that side and become minus 1. And the last that we have to remember is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. And यहाँ पर भी अगर हम 1 को लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो we will get cosec square theta minus cot square theta. And if cot square theta को लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो we will get cosec square theta minus 1. So this three you have to remember, and from this three we can play game with changing the sides and changing the values on the other side. ओके, सो ये थ्री अभी आपको याद रखना है. देखो ये वाला जो है साइन और कॉस तो बहुत ही एकदम पास के ही है, राइट? सबसे पहला जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा है ऑर्डर में, तो पहले साइन देखा है, फिर कॉस देखा है, फिर tan कॉट, सेकेंड कॉसेक. तो फर्स्ट फार्मूला तो जो है वो डायरेक्टली साइन और कॉस का है. देन ये वाला जो है सी वाला है, दोनों सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बचा फिर tan और sec, तो उसके लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. सो किसी भी तरह से आप इस फॉर्मूलास को याद रख लो, एंड ऑन दैट बेसिस वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.4. और पहले भी जो भी फार्मूलास हमने देखे वो भी यूज होंगे एक्सरसाइज 8.4 में. ओके, now starting the first question, exercise 8.4, that is express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. क्या कहा है हमको? हमें एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से साइन ए को, देन sec A एंड tan A. ये तीन जो है साइन ए, sec A एंड tan A, ये तीनों को हमको एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में, कॉट ए की फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है, चेंजेस करने हैं. ओके, सो इसके लिए हमें यहाँ पर ये फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. और ये फार्मूला जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले देखा था, डैट इज़ रेसिप्रोकल रिलेशंस, इसकी ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है ताकि
आपको समझाने में इजी रहे। ओके, आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो यहाँ पर आप देख के आप यूज़ कर सकते हो फार्मूला और आपको इजी रहेगा। ओके, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट है साइन ए, हमें साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट वी आर डूइंग फॉर साइन ए। ओके, तो अब साइन ए को हम कॉट ए के फॉर्म में कैसे करें? तो सपोज़ कि ये जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये है टीम ए, और ये जो रेसिप्रोकल रिलेशंस वाले हैं इनको मैं नाम देता हूँ टीम बी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऐसा कुछ रूल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो पहले ना साइन ए को क्या करना है, साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले साइन ए आएगा टीम ए के पास, और यहाँ पे देखिएगा कि साइन कौन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है इन टीम ए। तो यहाँ पे साइन ए वाला दिस इज़ द फॉर्मूला, द फर्स्ट वन, और यहाँ पे साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, अब साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इस फॉर्मूला को यूज़ करके कॉस के फॉर्म में, जैसे कि ये है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे यहाँ पर हो जाएगा। फिर कॉस यहाँ पर अभी टीम ए में देखा, टीम बी में देखो कॉस जो है किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? कॉस सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? कॉस सेक के फॉर्म में। देखो टीम ए साइन ए के पास जाके साइन हो जाएगा कन्वर्ट कॉस में। फिर अगर कॉस को हम टीम बी के अकॉर्डिंग करें तो कॉस सेक में कन्वर्ट होगा। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट करना है कॉट के फॉर्म में, राइट? हमें कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ए से बी में गए, फिर भी लास्ट में जो है कॉस सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट के फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो टीम ए से टीम बी वाला जो हमारा प्लानिंग था वो फेल हुआ यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि टीम बी में अगर साइन पहले आता है, टीम ए में नहीं टीम बी में, तो साइन किस में कन्वर्ट हो सकता है? साइन कन्वर्ट हो सकता है कॉसेक में, राइट? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है साइन। फिर कॉसेक टीम ए के अकॉर्डिंग कॉसेक को हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कॉसेक फिर कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सो इन दिस केस वी विल गो लाइक दिस कि पहले साइन को हम कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर फ्रॉम दिस फार्मूला वी विल कन्वर्ट कॉसेक इनटू कॉट। ओके, सो लाइक दिस वी विल गो। सो इस तरह से आपको ट्रायल करना है कि पहले ये फार्मूला यूज़ करके इस फार्मूला को यूज़ करें या फिर इस फार्मूला को यूज़ करके ये वाला फार्मूला यूज़ करें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस था वो हमारे लिए वैलिड नहीं हो पाया बिकॉज सेक में कन्वर्ट हो रहा था। सो पहले हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर साइन को कॉसेक में एंड देन कॉसेक को कॉट में कर रहे हैं। तो साइन ए वी कैन राइट 1 अपॉन कॉसेक ए, राइट? साइन ए को हमने लिखा 1 अपॉन कॉसेक ए। नाउ कॉसेक को कन्वर्ट करना है कॉट के फॉर्म में, एंड हियर इज द रिलेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मगर किसके जगह पे? कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे। और हमारे पास यहाँ पे है कॉसेक ए ही, कॉसेक स्क्वायर ए नहीं है। क्या है? कॉसेक ए ही है हमारे पास। तो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए होगा तभी हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ओके, सिंगल कॉसेक हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर या फिर 1 प्लस कॉट ए लिख नहीं सकते। इट इज़ रिटन दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर होना इम्पॉर्टेंट है, जो कि फ़िलहाल अभी यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो हमें यहाँ पे फॉर्म करना पड़ेगा, स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 अपॉन सब कुछ सेम, सिर्फ ये जो कॉसेक है इसको रूट में रखते हैं और इसको स्क्वायर भी दे देते हैं, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगी। यहाँ पे क्या किया? हमें स्क्वायर चाहिए था तो ए है नॉट थीटा। ओके, यहाँ पे एंगल है ए, हमें स्क्वायर चाहिए था तो हमने स्क्वायर लगाया, मगर स्क्वायर लगाने से ये पूरे चीज़ की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए वो चेंज ना हो उसके लिए हमने यहाँ पे रूट भी लगा दिया सो दैट इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपको नंबर के फॉर्म में बताऊँ, सो 5 है तो 5 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 स्क्वायर। 5 को आई कैन राइट अंडर रूट 5 स्क्वायर। क्या फ़र्क पड़ता है? ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर ये 5 ही आने वाला है। ओके, 5 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज हमने रूट भी लिया है और स्क्वायर भी लिया है। ओके, सपोज ऐसे में आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे में तो आ ही जाएगा। रूट 5 स्क्वायर है
सो 5 इज इक्वल्स टू रूट 5 का स्क्वायर, आई मीन 5 स्क्वायर एंड देन रूट है 5 स्क्वायर यानी 25, 25 का स्क्वायर यानी कि 5। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम। तो जब रूट भी ले रहे और स्क्वायर भी ले रहे तो यहाँ पे वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगी। एंड यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों किया, बिकॉज हमें स्क्वायर में चाहिए, कॉसेक की वैल्यू स्क्वायर में चाहिए इसलिए। नाउ हमारे पास कॉसेक स्क्वायर आ गया। नाउ व्हाट वी कैन राइट, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे हम रीज़न लिख सकते हैं वाई, बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए है तो ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके इन द एंड हमने साइन जो था, साइन उसको एक्सप्रेस किया किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। ओके, सो हियर दिस इज डन। इसके आगे और कुछ सॉल्व हो सकता तो हम करेंगे, मगर नहीं हो रहा है तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमने इन द एंड साइन को कॉट में कन्वर्ट कर दिया। चलो अब सेकेंड वन करते हैं। हमें इसी तरह सेके को कन्वर्ट करना है। तो सेके को हम कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम टीम ए के पास आते हैं तो सेक हमारा जो सेक है वो 10 में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सेक 10 में कन्वर्ट हो सकता है, और फिर यहाँ पे 10 जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो सकता है। सिंपल देखो, टीम ए और टीम बी डायरेक्टली। तो टीम ए में सेक को हमें अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो सेक कैसा होना चाहिए, सेक स्क्वायर होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वी कैन राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मगर यहाँ पर जो है सेक वो सिंगल सेक है, स्क्वायर में नहीं है, तो स्क्वायर हमें लाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही करेंगे। सो वी विल गेट अंडर रूट सेक स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर भी किया और रूट भी लिया ताकि वैल्यू में चेंजेस ना आए। तो अब हम इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वी विल राइट हियर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, हमने सेक को 10 में कन्वर्ट किया। अब हम वहाँ से ये जो फार्मूला है यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ओके, यहाँ पर हम रीज़न भी शो कर देता हूँ मैं, ताकि आपको इन फ्यूचर जब समझ देखना हो तो समझ में आए कि कैसे ये हुआ। दैट इज़ बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ओके, नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखना है हमें, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सो दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉट ए द होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, उसका भी स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे और भी सॉल्यूशन हो सकता है इसका। ये ब्रैकेट को ओपन करते दोनों का स्क्वायर करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। सो वील गेट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। ओके, देन आफ्टर दैट अगेन इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है। ये कॉट स्क्वायर ए को हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉट स्क्वायर ए इंटू 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके क्या होगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ओके, ऊपर हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। अब ये जो रूट है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का है। ओके, न्यूमरेटर में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है दैट इज़ कॉट स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट ऊपर सिर्फ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट में, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में ये रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ। सो वी विल हैव ओनली कॉट ए। ओके, ऊपर कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ऊपर में दो टर्म है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है जो स्क्वायर में है, तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और रूट। सो विल गेट कॉट स्क्वायर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो यहाँ पर अगेन हमने जो है सेके को कन्वर्ट कर दिया कॉट के फॉर्म में। ओके, सो दिस इज डन। नाउ थर्ड वन यू विल डू, 10 को कॉट के फॉर्म में करना है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपली 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, सिंपली यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा।
All right. Going for the second question, it is write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एंगल ए के लिए उसे हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ सेक ए, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कॉसेक. ओके, सेक के अलावा ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस सभी को हमें सेक के फॉर्म में क्या होगा वो एक्सप्रेस करना है. जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे ही करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन से. ओके, साइन ए. तो साइन ए को मुझे एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में? सेक ए के फॉर्म में. तो साइन फर्स्ट टीम ए में साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में. ओके, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और फिर टीम बी में कॉस हो जाएगा सेक में कन्वर्ट. राइट, कॉस हो जाएगा सेक में कन्वर्ट. तो वही करेंगे हम. तो यहाँ पर ये यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, मगर साइन स्क्वायर में होना चाहिए. तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया रूट और ये दे दिया मैंने स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए. ओके, ये हो गया स्क्वायर में फॉर्म. तो अभी हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ओके, रीज़न बिकॉज ये वाला हमने यूज़ किया ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. ओके, उसके बाद कॉस को हमें कन्वर्ट करना है सेक में. तो ये रूट 1 माइनस कॉस के जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन सेक और ये होल स्क्वायर. ओके, सेक ए होल स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो वी विल गेट अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए. ओके, इस इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे पहले सम में किया हमने, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय होल सेक स्क्वायर ए. ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से. सो वी विल गेट अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए. तो यहाँ पर हमने साइन ए को कन्वर्ट कर दिया सेक ए के फॉर्म में. सेकेंड अभी हम करेंगे साइन के बाद कॉस को कन्वर्ट करते हैं. कॉस ए को करना है सेक ए में कन्वर्ट. कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए. कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए. दैट्स इट, डन. कॉस ए सेक ए में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद साइन कॉस, फिर थर्ड वन टेन ए को करते हैं. टेन ए को करना है किस में कन्वर्ट? सेक ए के फॉर्म में. तो यहाँ पर टेन को लिख सकते हैं सिंपली सेक के फॉर्म में. राइट, यहाँ पे ये यूज़ करके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर ये देखो टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मगर टेन कैसा होना चाहिए? स्क्वायर के फॉर्म में. तो ये मैंने लगा दिया रूट और ये टेन स्क्वायर ए, एंड देन टेन स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1. सो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1. दैट्स इट, हो गया कन्वर्जन 10 का सेक में. ओके, बाकी के दो आप लोग करोगे. दैट इज़ फॉर कॉट ए को सेक में करो और फिफ्थ वन कॉसेक ए. ओके, सेक ए तो ऑलरेडी है ही सेक ए के फॉर्म में ही. तो कॉट ए एंड कॉसेक ए ये आप दोनों करेंगे. इसको कन्वर्ट करना है सेक ए के फॉर्म में. Going for the third question, that is evaluate. We have to evaluate. 2 questions are given. First we are solving now. Sin square 63 degree plus sin square 27 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree. Okay, numerator upon denominator we are having. So यहाँ पर देखो ऊपर यहाँ पे एंगल देखो. पहले तो एंगल की वैल्यू जो है वो 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड है. तो जब भी मैंने कहा था कि ऐसा एंगल नहीं हो तो हमें 90 माइनस थीटा वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करना है. तो यहाँ पर वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे. तो जो न्यूमरेटर है वहाँ पर 63 और 27 है. राइट, 63 और 27 दोनों को प्लस करते हैं. तो 63 प्लस 27 वी विल गेट 90. राइट, ये दोनों का सम 90 हो रहा है. तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और किसी एक को चेंज नहीं करेंगे. सो लेट्स डू दैट. सो ये साइन स्क्वायर
63 डिग्री एज इट इज़ रखा मैंने, और इस 27 को मैं चेंज करता हूँ किस में, कॉस स्क्वायर में, और 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ओके, साइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉस में, सो दैट्स वाई ईयर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में भी देखो ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 73 है, और 17 प्लस 73 करेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम किसी एक को चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज नहीं करते हैं। लेट्स ये कॉस स्क्वायर 17 को ऐसा ही रखा मैंने। ओके, किसी भी एक को कर सकते हैं आप, और ये कॉस को मैंने कर दिया साइन में कन्वर्ट, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, ये तो एज इट इज़ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27, 90 माइनस 27 इज 63 डिग्री अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 इज 17 डिग्री। सो एज द रिजल्ट व्हाट वी गेट, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी अभी हमने आइडेंटिटी में देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। जब थीटा की वैल्यू सेम हो तब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 63 है प्लस कॉस स्क्वायर 63 इज इक्वल्स टू, वी विल राइट हियर इक्वल्स टू डायरेक्टली 1 हो जाएगा ये ऊपर वाली वैल्यू। और सिमिलरली नीचे भी ऐसा ही कुछ है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ओके, सिर्फ कॉस आगे है साइन पीछे, बट एडिशन में इससे मैटर नहीं करता। ओके, एंगल सेम है ना, 17 है, यहाँ पर भी 17 है, दोनों का स्क्वायर किया है और दोनों का ऐड किया है, तो ये भी हो जाएगा 1। यहाँ पे हम रीज़न लिख सकते हैं कि भाई 1 1 कैसे हो गया, सो बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, जो अभी अभी हमने पढ़ा। ओके, सो दैट्स वाई वी विल गेट 1/1 इज इक्वल्स टू, द आंसर इज 1। द आंसर वी गॉट, द इवैल्यूएशन ऑफ दिस थिंग इज 1। Okay, similarly going for the second question, sin 25 degree plus cos 65 degree, sorry, sin 25 degree into cos 65 degree plus cos 25 degree into sin 65 degree। फर्स्ट ये दोनों को देखें हम, तो 25 प्लस 65 90 हो रहा है, 65 70 80 90 राइट हो रहा है। तो हम किसी एक को चेंज कर देते हैं, लेट साइन को ऐसे ही रखते हैं हम, ये साइन 25 डिग्री एज इट इज़, इस कॉस को चेंज कर देते हैं साइन में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ओके, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, प्लस यहाँ पर भी 25 और 65 दोनों का सम 90 हो रहा है, किसी एक को चेंज करते हैं, किसी एक को ऐसे ही रहने देते हैं। लेट्स कॉस 25 को ऐसे ही रखते हैं हम, कॉस 25 डिग्री एज इट इज़, और ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ओके, इतना किया, उसके बाद साइन 25 डिग्री डॉट साइन 90 माइनस 65 साइन 25 डिग्री ओनली, 90 माइनस 65 25 प्लस कॉस 25 डिग्री डॉट कॉस 90 माइनस 65 इज 25 डिग्री। सो व्हाट वी गॉट हियर, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, 2 टाइम्स साइन 25 डिग्री राइट, दैट इज साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, 2 टाइम कॉस 25 डिग्री, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। एंड व्हाट वी गॉट हियर, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो अभी अभी हमने यहाँ पे भी लिखा, इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज यहाँ पे रीज़न मेंशन कर देते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। That's it. This is the solution of this question. All right. Going for the fourth question, that is choose the correct option and we have to justify our choice too. The first question is 9 sec square a minus 9 tan square a is equals to, we have to find from the following options. So here we have to solve it. So solving the first one, and that is we have 9 sec square a minus 9 tan square a. Okay, so from this both the terms have 9 as the coefficient, we are removing 9 common from both, so 9 को common निकाल लिया, so अब बचा हमारे पास
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, राइट, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, हमारे पास ये रिलेशन है, राइट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और ये टेन स्क्वायर ए उस तरफ जाता है तो वी हैव 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सो व्हाट वी गॉट, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम इस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1, 9 इंटू 1 एंड इट इज़ 9। यहाँ पे हम रीज़न लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ओके, ये रिलेशन हमने, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ किया और हमारा आंसर क्या आया, 9। बी इज़ द आंसर। ओके, गोइंग फॉर द सेकेंड सॉल्यूशन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, देन इन ब्रैकेट क्लोज, देन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये थोड़ा सॉल्यूशन लेंथी है तो मैं ये फर्स्ट वन भी इरेज कर देता हूँ। ओके, सो सेकेंड वन, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, हियर अभी आपको ऐसा यहाँ पे दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। ओके, अगर ऐसा कुछ होता तो हम ये करते, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, पूरा फंक्शन ही डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि कौन सा वाला फार्मूला हम यूज़ करें। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ दैट कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है ना, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। किसमें, साइन और कॉस के फॉर्मेट में। तो क्या होगा, ये 1 एज इट इज़ 1 ही रहेगा, 1 प्लस टेन थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अभी सब फॉर्मूलाज मेजरली यूज़ हो गए। इसके बाद जो हम प्रूव डेट करेंगे उसमें भी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये कैसे है, बिकॉज टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में, प्लस सेक थीटा इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, सो 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, 1 एज इट इज़, 10 को साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा। ओके, जो मैंने कहा कि आपको सभी फंक्शंस को साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज कर देना है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। 1 प्लस कॉट थीटा मीन्स व्हाट, कॉट थीटा यानी द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, सो कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसका उल्टा, राइट, टेन थीटा का उल्टा, माइनस कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो 1 अपॉन साइन थीटा हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में किया कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस के फॉर्मेट में। 1 एज इट इज़, टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा रेसिप्रोकल, 1 एज इट इज़, प्लस कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, नाउ ये ब्रैकेट में, ओके, फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म है, ये 1, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म। ओके, 3 टर्म्स है, जिसमें 2 टर्म्स में कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में, थर्ड वन यानी कि जो फर्स्ट है इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे अब एलसीएम करते हैं, तो दोनों के पास है कॉस थीटा, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये एज इट इज़, प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया,
तीनों के पास cos थीटा होता है अगर डिनोमिनेटर में, तो व्हाट वी कैन डू, तीनों में कॉमन डिनोमिनेटर तो उसको हम कंबाइनली ऐसे लिख सकते हैं और ऊपर वाले सबको हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो वैसा नहीं है, तो यहाँ पर ये जो 1 है उसमें हमने cos थीटा मल्टीप्लाई किया। ओके, एक स्टेप चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, बट लेंथी हो जाएगा, इसके लिए मैंने नहीं लिखा कि cos थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी किया। ओके, फर्स्ट टर्म में cos थीटा इंटू 1, यहाँ पे cos थीटा मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, प्लस sin थीटा बाई cos थीटा ये एज इट इज़, प्लस 1 बाई cos थीटा ये भी एज इट इज़। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, तीनों डिनोमिनेटर में cos थीटा हो गया, तो इसको कंबाइनली नीचे 1 एज इट इज़ cos थीटा, और ऊपर वाले को फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, डायरेक्टली cos थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली यहाँ पर भी sin थीटा दोनों के पास है, यहाँ पे नहीं है, तो sin थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर में sin थीटा। ओके, ये हमने सेकंड स्टेप किया। अब इसके बाद हम दोनों ब्रैकेट ओपन करके आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई, व्हाट डू वी गेट हियर इज, न्यूमरेटर में दिस इज व्हाट, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ओके, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, हियर इज sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। सो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मेट अप्लाई होगा। दिस इज व्हाट, cos थीटा प्लस sin थीटा, ओके, प्लस 1, हियर इट इज व्हाट, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ओके, दिस इज cos थीटा प्लस sin थीटा, हियर इट इज sin थीटा प्लस cos थीटा, बोथ आर द सेम थिंग, सिर्फ अरेंजमेंट आगे पीछे है, राइट। इसके बाद यहाँ पे है प्लस 1, यहाँ पे है माइनस 1, यानी कि ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, जहाँ पे a के जगह पे है cos थीटा प्लस sin थीटा, ये पूरा का पूरा टर्म a है ये हमारा, और प्लस b के जगह पे है 1। ओके, a sin थीटा प्लस cos थीटा होल टर्म माइनस b यानी कि 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले a का स्क्वायर देन माइनस b का स्क्वायर। तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट a है हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हमारा a वैल्यू है। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो मैं आपको ऐसे लिख के बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा a है, ये प्लस बीच में ये b, a प्लस b मल्टीप्लाई बाई ये है a माइनस b, तो a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर, a यानी कि दिस होल टर्म sin थीटा प्लस cos थीटा, a स्क्वायर देन माइनस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस b स्क्वायर, b यानी कि 1 है हमारा, तो 1 स्क्वायर होल अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन cos थीटा इंटू sin थीटा, नथिंग sin थीटा डॉट cos थीटा ओनली, दोनों का प्रोडक्ट एज इट इज़। ओके, इतना हुआ। इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, ये sin थीटा प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर, दैट इज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। एंड व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट, दिस इज द फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे। सो a है हमारा, अभी इस केस में हमारा a हो जाएगा ये sin थीटा प्लस b cos थीटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर यानी कि sin थीटा का स्क्वायर होगा sin स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर हमें पता है ये चीज़ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, इसलिए हम यहाँ पे ना इस फॉर्मूला में a स्क्वायर फिर पहले बी स्क्वायर लेते हैं और 2ab को पीछे लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर पहले करते हैं और फिर 2ab करते हैं, ताकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। ओके, धीरे धीरे समझो, ओके, ज़्यादा जल्दी नहीं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा a, फिर हम कर रहे बी का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, सो प्लस 2, a के जगह पे साइन थीटा, सो 2 साइन थीटा
डॉट बी के जगह पे कॉस थीटा, सो कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर का एक्सपांसन यहाँ पे हो गया। देन माइनस है 1 का स्क्वायर 1। ओके, न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ओके, सो अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 1 हो जाएगा ये, प्लस ये पूरा 1 हो गया हमारा, ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। यहाँ पे रीज़न लिख देता हूँ मैं, बिकॉज ये 1 कैसे आया, आगे वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए आया। अब ये जो +1 है, ये जो -1 है, तो 1 - 1 0 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 1 0। अब क्या बचा हमारे पास, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, दिस आर सेम थिंग, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या ऊपर 2, दैट्स इट, 2 इज़ आवर आंसर, दिस इज़ आवर आंसर 2। सो इस तरह से ये सम सॉल्व होगा। ओके, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ये सारे सम्स जो है, ओके, प्रैक्टिस अच्छे से करना है। थर्ड क्वेश्चन इज sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, सो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो sec a हो जाएगा हमारा 1 बाई कॉस ए प्लस 10a हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, राइट। sec a 1 बाई कॉस ए, 10a साइन ए बाई कॉस ए, और ये तो साइन ए में ही है फॉर्म, साइन के फॉर्म में, तो ये एज इट इज़ 1 माइनस साइन ए। ओके, ये वाले लेफ्ट ब्रैकेट में दोनों डिनोमिनेटर में कॉस ए है, सो वी विल हैव 1 प्लस साइन ए होल बाई कॉस ए, और ये तो एज इट इज़ 1 माइनस साइन ए ओनली। दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ना आमने सामने, तो ऊपर 1 प्लस साइन है, यहाँ पे 1 माइनस साइन है, दैट इज़ a प्लस बी अगेन a माइनस बी। सो अभी हमने किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस b यानी कि साइन ए है इस टाइम पे, तो 1 स्क्वायर माइनस लिख देते एक बार साइन ए का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस ए ओनली, न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर के साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कैसे आया कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजते, वी विल हैव कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आ गया ये कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर ए यानी कि 2 टाइम्स कॉस ए, राइट, कॉस ए इंटू कॉस ए, और डिनोमिनेटर में एक कॉस ए के ऊपर स्क्वायर तो 2 टाइम लिखा, तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, वी विल हैव कॉस ए एज आर आंसर, कॉस ए कॉस ए कॉस ए डी कॉस ए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। Going for the fourth one, 1 plus tan square by 1 plus cot square, and we have 1 plus tan square is equals to हम लिख सकते हैं 1 plus tan square को sec square, और 1 plus cot square को हम लिख सकते हैं cos sec square डायरेक्टली, ये तो वैल्यू है ही हमारे पास, राइट, sec square अपॉन cos x square हुआ। अब हमें कन्वर्ट करना है अगेन इसको साइन और cos के फॉर्म में, तो व्हाट विल गेट, sec square विल बिकम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, राइट, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए विल बिकम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट, सेक स्क्वायर ए क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, सो यहाँ पे दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, जो पहले बताया था मैंने, ये सबसे ऊपर जाएगा और उसके नीचे ये, और दोनों मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई जो साइन स्क्वायर है वो सबसे ऊपर, साइन स्क्वायर ए
divide by 1. So ये 1 से 1 cancel and we will have sin square a upon cos square a. Sin square a upon cos square a. What is sin upon cos is? Sin upon cos is tan. So tan square a. Our answer is tan square a, that is D. Okay, so this is the solution of the fourth question. Choose the correct options.